Hello, dear students. So, in continuation of our series of chapters discussion of CTET, today we are discussing the topic identifying and addressing the talented, creative, and specially abled learners. So, students, आज हमें सीखना है how to identify, how to address the talented and creative and specially abled learners means students. So we are discussing here with about gifted students, gifted and talented children at the opposite end of the learning scale of learning disabled learners. मतलब जो नहीं कर पाते हैं उनसे उल्टा है those who are gifted, who are very intelligent, means more than the intelligent even. Thus they are also called specially abled learners. तो हम उनको disabled की जगह opposite language use करेंगे, specially abled learners. However, our educational traditions make it difficult to address the student differences. But practically होता क्या है कि in most of the educational institutions, teachers do not differentiate between able, disabled, gifted, or talented student, average student. They teach ordinarily, averagely, and generally they teach to every student simply. Okay, they do not differentiate, they do not recognize. This situation should be improved. That's why this chapter is here to teach you. Normally the teacher presents the lessons to the whole class together and all students complete the same assignment. समझ गए? तो टीचर तो क्लास को क्या है, ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को एक ही इंस्ट्रक्शन देता है, टीचिंग करता है एंड असाइनमेंट्स भी सेम देता है. हाउएवर सच ए मेथड ऑफ पेडागोजी हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इनइफेक्टिव. और यही जो मेथड है पेडागोजी का, इट हैज़ बिकम इनइफेक्टिव, क्योंकि इससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है. बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑफ डाइवर्स टाइप्स and their needs are diverse and their performances are diverse. Consequently, अब as a result होता क्या इसका नतीजा, strategies for differentiating instructions are required not only for the learning disabled but also for the specially able learner. कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए भी डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ होनी चाहिए. ओनली ये नहीं है कि जो डिसेबल्ड है या जो नहीं समझ पा रहा है, राइट? These learners need to be identified and strategies of pedagogy to address their needs should be formulated. कि ये जो talented students हैं they also should be recognized और उनके अकॉर्डिंग उनको काम दिया ना जाना चाहिए. क्योंकि एवरेजली जो टीचर काम देता है, असाइनमेंट देता है, क्वेश्चंस देता है सॉल्व करने को, वो ईजी होती है बिकॉज दैट आर मेड इन कंटेक्स्ट ऑफ होल क्लास. वो पूरी क्लास को देखते हुए बनाई जाती है. तो गिफ्टेड के लिए उनके लेवल का थोड़ा हायर लेवल का बनाना चाहिए. स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, यू नो स्टूडेंट्स, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, गिफ्टेड, टैलेंटेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन वर एसोसिएटेड प्राइमरली विद हाई IQ. अब जो हम बात कर रहे हैं स्पेशली एबल्ड लर्नर्स की, दे आर प्राइमरली हैविंग हाई IQ. उनका इंटेलिजेंस कोशिएंट हाई होता है. It was assumed that gifted students were born with high intelligence, were identifiable by their high grades and test scores, and were capable of excelling in all areas of school and of life. But the view is changing now due to general acceptability of Gardner theory of multiple intelligence. अब ये जो व्यू है कि वो हाई IQ से पैदा हुए हैं, ये गार्डनर की थ्योरी ने इसमें कुछ इस सोच में कुछ चेंजेस लाए हैं. इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग गिफ्टेड रेदर देन ए फिक्स्ड लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ सच लर्नर्स. कि कोई भी इंसान जो है वो डिफरेंटली जो है गिफ्टेड होता है. देखिए, कुछ स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं, कुछ पेंटिंग में एक्सेल करते हैं. तो हमें सिर्फ एक नहीं है कि बुक्स की रट्टा मार लिया और बुक्स में परफॉर्मेंस दे दी, 100% मार्क्स ले लिए, यही लर्निंग है. नो. जो क्रिकेट में एक्सेल कर रहा है, जो एथलेटिक्स में एक्सेल कर रहा है, जो रेसलिंग में एक्सेल कर रहा है, जो पेंटिंग अच्छी बना रहा है उसमें एक्सेल कर रहा है, दीज आर ऑल्सो गिफ्ट्स ऑफ द ऑलमाइटी. राइट? नाउ traditional IQ tests and most other standard tests also measure only logical, mathematical and linguistic intelligence.
जो हमारे ज़्यादातर मेथड डेवलप किए गए हैं वो क्या है, वो बुकिश इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करते हैं, राइट। एंड दिस इज़ द वीकनेस ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम. But this is changing as teachers attempt to include all 8 of the Gardner's intelligences into their teaching. But अब ये चेंज हो रहा है पैरामीटर, एंड गार्डनर ने जो 8 के 8 पैरामीटर्स दिए थे, ठीक है, तो उनको इंक्लूड किया जा रहा है अब, और IQ चेक करने का मेथड चेंज हो रहा है. द स्कूल्स मस्ट बिकम मोर स्पेसिफिक अबाउट आइडेंटिफाइंग एबिलिटीज एंड एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ rather than giving students a general gifted or talented level. What he is saying कि schools को अब only ये नहीं कहना चाहिए कि ये gifted student है, ये talented. उनको उनकी abilities को one by one identify करना चाहिए, ओके, एंड उनको फिर उनकी उसी टैलेंट को, उसी गिफ्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आगे बढ़ाना है. दे शुड वर्क फॉर दैट. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड एंड लर्नर स्टूडेंट्स. देखिए, जो मैथमेटिकली गिफ्टेडनेस होती है एंड साइंटिफिक गिफ्टेडनेस होती है, इसमें क्या डिफरेंस है. दिस शुड बी नोटेड डाउन एंड लर्नड परफेक्टली, क्योंकि आपको सीटेट में बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. अब मैथमेटिकल गिफ्टेडनेस क्या है, यूजुअल क्यूरियोसिटी अबाउट नंबर्स एंड मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन. नंबर के बारे में, नंबर प्ले गेम जितनी ज़्यादा कर सके, जितना इफेक्टिवली कर सके, वो मैथमेटिकल गिफ्टेडनेस है. बट स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरनमेंट जब होगी, दैट इज साइंटिफिक गिफ्टेडनेस. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई आइडियाज क्विकली, तो मैथ्स की हो जाएगी. हाई इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेटिंग माइंड है किसी का तो वो साइंटिफिक गिफ्टेडनेस होती है, राइट. पैटर्न्स को समझना, एब्स्ट्रैक्टली सोचना, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना, एनालाइज करना, ये मैथमेटिकल गिफ्टेडनेस है. जबकि ऑब्जर्वेशन करना और उस ऑब्जर्वेशन पे अपना एनालिसिस देना, अपना कंक्लूजन देना, उसको चेक करना, ये साइंटिफिक गिफ्टेडनेस है, राइट. यूज़ ऑफ फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव स्ट्रेटजीज एंड सॉल्यूशंस, ये मैथमेटिकल में आएगा. बट कलेक्शन, सॉर्टिंग, क्लासीफाइंग, जैसे साइंस में किया जाता है ना कि सर्वे किया जाए, फिर डाटा लिया जाए, डाटा को कलेक्ट किया जाए, उसको सॉर्ट किया जाए जो हमें चाहिए, देन क्लासीफाई किया जाए डिफरेंट कैटेगरीज में. This is scientific type of giftedness. Use of analytical, deductive and inductive reasoning, ये mathematical में आता है. But unusual ability to generate creative, जब creativity ज़्यादा अप्लाई की जाएगी कि क्या होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स में यू आर बाउंड. जो आपको डाटा दिया गया या क्वेश्चन दिया गया, यू कॉन्ट गो बियॉन्ड. बट साइंस में आपको कोई क्वेरी की जाती है तो यू कैन ऐड कि दिस शुड हैपन दिस वे और दिस कैन हैपन दिस वे. तो ये एक क्रिएटिव जो आपके आइडियाज़ हो जाएंगे, दे कम अंडर साइंटिफिक गिफ्टेडनेस, राइट. दिस इज़ द वे. सो स्टूडेंट, हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है. लेवल्स ऑफ एबिलिटी क्या है. देखिए, मॉडर्नली गिफ्टेड क्या होता है. दिस क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय WISC फॉर 2008 में, ओके. अब गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट को हम किस रेंज में करते हैं, IQ लेवल देखते हैं उनका 130 to 200. ये याद रखिएगा, 130 to 200 ये रेंज है IQ की. नाउ मॉडरेटली गिफ्टेड हो जाता है जिसका IQ 130 to 144 है. हाईली गिफ्टेड हो जाता है जिसका IQ 145 to 159 है. एक्सेप्शनली गिफ्टेड हो जाता है IQ लेवल 160 to 179 है. पर प्रोफाउंडली गिफ्टेड हो जाता है IQ 180 से ज़्यादा है, ठीक है. अप टू 200 तो स्केल है ही. सो 180 से ज़्यादा 200 तक जितना भी होगा, दे आर प्रोफाउंडली गिफ्टेड, बहुत ज़्यादा. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर. अब ये गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, याद रखना. दे आर फ्लुएंट, फ्लुएंसी होती है इनकी. दिस इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ डिफरेंट आइडियाज़ एंड दैट टू फास्ट. To promote fluency, the teacher can provide learners with more opportunities that stimulate their thought process. तो टीचर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन दे, ये उनका फ़र्ज है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम दे, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका सोल्यूशन निकाले. ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस ऐसी असाइनमेंट्स दी जाएँ जो उनकी क्रिएटिविटी को भी आगे बढ़ाएं. Then flexibility. This is the ability to approach different situations and develop solutions to them from a number of different perspectives. कि उनको कोई ना कोई सिचुएशन दीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम लिखवाइए या बताइए या पूछिए
देन वो सोल्यूशन डेवलप करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से सोल्यूशन पे आएंगे. दिस इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. फिर है ओरिजिनलिटी. दिस इज़ द एबिलिटी टू हैव ए न्यू और नॉवल आइडिया, कि उनका अपना आइडिया क्या आया. ये नहीं है कि किसी का पढ़ा हुआ या किसी कहीं से रट्टा मारा हुआ या किसी का बताया हुआ. नो, ओरिजिनल आइडिया अगर स्टूडेंट के माइंड में आता है, इट शुड बी प्रमोटेड. ठीक है. टू प्रमोट ओरिजिनलिटी द टीचर कैन प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ मटीरियल्स एंड एक्सपीरियंसेस इन विच चिल्ड्रन कैन यूज देयर इमेजिनेशन एंड क्रिएट समथिंग न्यू. और यही सारी एडवांसमेंट का सीक्रेट होता है. फिर देन इलेबोरेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन. दिस इज़ द एबिलिटी टू एक्सटेंड आइडियाज़, कि अपने आइडियाज़ को कितने तरीके से बताना. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ माइंड में आना. दिस इज़ व्हाट हेयर ही इज़ डिस्कसिंग. ठीक है. तो ये इस तरीके से आपको ये जो चैप्टर है कि आइडेंटिफाई करना है, एड्रेस करना है एंड ऑफ द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, इस तरह से हम कर सकते हैं. अब टीचर्स एंड स्कूल्स मस्ट यूज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स बिसाइड्स ग्रेड्स एंड टेस्ट स्कोर. ओनली वो कह रहा है कि ग्रेड्स और टेस्ट स्कोर ही नहीं देखना है, उनको डिफरेंट 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 पैरामीटर्स पे डिसाइड करना है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या है, इनकी नीड क्या है और हमें कैसे प्रमोट करना है. अदर फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड ए रिचर एंड मोर एक्यूरेट पिक्चर्स, क्योंकि ग्रेड्स या टेस्ट स्कोर के अलावा जो बाकी पैरामीटर हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जो कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़ को बताएंगे हमें. फर्स्ट इज़ टीचर ऑब्जर्वेशन. भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि टीचर अगर ऑनेस्टली ये अपने आप को मतलब अपने लेवल पे स्टूडेंट्स को चेक कर रहा है, तो his observation is the best source to identify the talented student. Teachers who establish relationship with their students are able to identify high ability students immediately, and they are best source to do so, क्योंकि टीचर्स का डायरेक्ट रिलेशन है स्टूडेंट्स के साथ. सो टीचर कैन मेक ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड आउट द गिफ्टेड स्टूडेंट्स. इंटरव्यूज विद स्टूडेंट्स. भाई ट्रेन्ड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेंगे, दे विल ऑल्सो फाइंड आउट द गिफ्टेड स्टूडेंट्स. फिर है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स. पेरेंट्स क्या बताते हैं, बच्चा घर में कैसे बिहेव करता है, कैसे आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है, कैसे ग्रास्प करता है किसी सब्जेक्ट को या सिचुएशन को. दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल टू टेल अस वेदर द चाइल्ड इज गिफ्टेड और नॉट. देन पोर्टफोलियोज ऑफ स्टूडेंट वर्क. दीज आर मोर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिएटिव लर्नर्स, कि स्टूडेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, उनकी क्या क्या हैबिट्स हैं और वो किस तरह से परफॉर्मेंस ला रहे हैं किसी भी सिचुएशन में. चाहे वो गेम खेल रहे हैं, चाहे वो घर में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी में जाके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. दीज पोर्टफोलियोज ऑफ स्टूडेंट वर्क हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द क्रिएटिव और गिफ्टेड स्टूडेंट्स. राइट. तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे. फिर है एबिलिटी ग्रुपिंग. हेट्रोजेनस ग्रुप, होमोजेनस ग्रुप. एबिलिटी ग्रुपिंग का क्या मीनिंग है कि दिस टर्म रेफर्स टू ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर विद इन द हेट्रोजेनस क्लासरूम्स. कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स विच कैन बी क्रिएटेड बाय द टीचर फॉर इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ गिफ्टेड लर्नर्स एंड ऑल्सो टू बेनिफिट अदर लर्नर्स. हेट्रोजेनस हो जाएगा एंड होमोजेनस हो जाएगा. हेट्रोजेनस में क्या है, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लेवल के स्टूडेंट्स को और डिफरेंट इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट्स को एक ग्रुप बनाया जाता है. होमोजीनस में सेम इंटेलेक्चुअल लेवल के स्टूडेंट्स को रखा जाता है. जब हेट्रोजीनस होता है स्टूडेंट्स, ऑल गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर डोमेन विल बी पुट अंडर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स. होमोजीनस में ऑल गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर डोमेन शुड बी ग्रुप टुगेदर. तो ये हम कैटेगरी करते हैं. ओके. अब पेडागॉजी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए एंड पेडागॉजिकल स्ट्रेटजीज क्या बताती हैं हमें. दैट नंबर 1, एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर पेडागॉजी टू एड्रेस गिफ्टेड, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव लर्नर्स in an inclusive classroom requires the teacher to use the concept called differentiated instruction. स्टूडेंट बेस्ड, स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन ये होनी चाहिए. दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डिटेल्ड, वेरी वाइड डिटेल्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग that guides teachers in all aspects, right? And number third is students, it is the continuous process of learning. About students,
needs and interests and using this knowledge to guide instruction. However, it does not mean grading gifted students harder than others. मतलब इसमें मार्क्स देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन करना है ऐसा नहीं है. टीचर्स शुड यूज देयर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन हाउ कंटेंट इज प्रेजेंट. एंड ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ his content should be presented, what activities are suitable for different students, and how to guide students in demonstrating what they have learned, right? तो ये स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी. चेंजिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट. द क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन शुड बी suitably changed to allow students to choose what they want to work. और क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की क्या नीड हैं उनको फुलफ़िल कैसे किया जाए और उनकी क्रिएटिविटी को प्रमोट कैसे किया जाए, ये जो है वहाँ पे करवाया जा सके. दिस कैन बी अकम्पलिश्ड बाय द टीचर यूजिंग मैथड्स लाइक दीज गिवन बिलो. और टीचर इसको कैसे करेगा? यूज एक्टिविटीज़ that students can complete with little supervision, like writing journal entries or working on a portfolio, so that the teacher can work directly with the rest of student. तो ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है जिसमें लिटिल सुपरविजन हो टीचर की, ताकि टीचर सबको ध्यान दे सके थोड़ा थोड़ा. इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन क्रिएटिंग क्लासरूम प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड इन ऑर्गेनाइजिंग देयर टाइम. और स्टूडेंट्स को ही प्रमोट किया जाए कि आप क्लासरूम के प्रोसीजर को कैसे चलाएंगे, ठीक है, वहाँ रूल्स बनाए जाएं अकॉर्डिंग टू क्लास एंड ऑर्गेनाइज किया जाए अकॉर्डिंग टू द टाइम. दिस हेल्प्स देम टू बिल्ड इंपॉर्टेंट स्किल्स इन डिसीजन मेकिंग. इससे बच्चा भी जो है उसके डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, उसकी नेगोशिएटिंग स्किल्स बढ़ेंगी, वो प्लानिंग करना स्टार्ट करेगा. ओके. एंड स्टूडेंट्स फील होम एंड इन्वॉल्व इन क्लासरूम. और स्टूडेंट्स को कोई हेजिटेशन भी नहीं होगी, वो कंफर्टेबल फील करेंगे. क्रिएट असाइनमेंट कार्ड्स इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्शंस. और असाइनमेंट कार्ड बनाने चाहिए डिफरेंट स्टूडेंट्स के, ताकि स्टूडेंट चाहे उनको लिख ले, टीचर शुड इंस्ट्रक्ट ओरली, ओके, और या तो उनको बोर्ड पे लिख दे. दिस विल हेल्प इन हैविंग इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल फॉर इजी एक्सेस टू ऑल. तो ईजीली सारे बच्चे इसको समझ जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे. लास्ट मेथड है डेजिग्नेट ए स्टूडेंट टू सर्व एज एक्सपर्ट ऑफ द डे. बारी बारी टर्न बाय टर्न एक्सपर्ट ऑफ द डे स्टूडेंट को बनाया जाए, जो कि आगे भी इंस्ट्रक्शन दे सके और उसको उस टॉपिक की भी जिस पे वो अपना परफॉर्मेंस दे रहा है डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. दिस विल एनेबल स्टूडेंट्स विद डिफ़िकल्टीज नॉट हैविंग टू वेट अंटिल द टीचर इज़ फ्री. तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स में इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि वो हर बात के लिए टीचर का वेट नहीं करेंगे कि टीचर क्या कहता है या टीचर ही इसको करेगा. दे विल बी एबल टू अंडरटेक दैट प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, कंप्लीट दैट असाइनमेंट. ओके. तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर था जिसमें कि इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी हमने चीज़ें की हैं. एंड यू शुड ट्राई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर दिस, क्योंकि जब तक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को नहीं करोगे योर प्रेपरेशन इज़ इनकम्प्लीट. सो प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड हाउ टू अटेम्प्ट दीज MCQs. ठीक है, आप चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कीजिए, लर्न कीजिए एंड देन प्रैक्टिस हाउ टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे कि आपका 100% परफॉर्मेंस हो जाए. So students, this chapter is very interesting. How we have to identify and address the talented, creative and specially able learners. तो इसकी ये चीज़ें हैं जो कि आपने इजीली करनी है. अब ये हमें थोड़े थोड़े प्रोसेसेस बताए थे जो कि कैसे हमने एड्रेस करना है स्पेशली एबल्ड लर्नर्स यानी टैलेंटेड को. तो इसमें लास्ट क्या था, एक डिफ्रेंशिएटिंग कंटेंट आया ना ये वाला. उसके बाद लास्ट अपने पास आया था डिफरेंशिएटिंग प्रोसेसेस. द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू कीप गिफ्टेड एंड क्रिएटिव लर्नर्स एंगेज्ड इज़ टू इन्वॉल्व देम इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. कि अगर आपने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बिजी रखना है और उनको और आगे बढ़ाना, उनको सिखाना है, तो उनको सेल्फ लर्निंग की आदत डालिए पहले तो, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो दे विल बी एबल टू बिकम मोर क्रिएटिव एंड दे विल solve the different situations. Okay, they will find out the ways to get out of the situations and to make decisions very fast and very confidently. This means that such learners should be able to, क्या होना चाहिए,
these learners means these gifted students must be able to make decision based on self knowledge. पहली बात, अपने नॉलेज पे वो डिसीजन करेंगे. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीटिंग देयर वर्क इन टाइम एंड एट एन एक्सेप्टेबल लेवल. वो विद इन टाइम काम करेंगे और एक्सेप्टेबल लेवल पे अपना काम कंप्लीट करेंगे. सीक एंड आर्टिकुलेट प्रॉब्लम्स एंड डिटरमाइन ए मेथड फॉर सॉल्विंग दैम. वो क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम्स को देखेंगे, फिर उसका प्रॉब्लम पे सोचेंगे, वर्कआउट करेंगे, ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, और फिर मेथड इवॉल्व करेंगे अपने आप, यानी सॉल्यूशन इवॉल्व करेंगे, निकालेंगे और उस पर काम करेंगे. इवेल्युएट देयर ओन वर्क. फिर वो जज भी करेंगे कि उन्होंने जो किया है वो ठीक है कि नहीं है. दे कैन अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू. अब ये बच्चा जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो ये कैसे कर सकता है. नंबर 1, ओरिएंटेशन. ठीक है, ओरिएंटेशन मीन्स उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेंगे. एबिलिटी, स्किल्स, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे. देन एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ मीन्स वो उनको वाइड रेंज ऑफ कंटेक्ट एरियाज दिया जाएगा. जब तो कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे फील्ड ट्रिप्स हो, चाहे डिस्कशंस हो, इस सारे में इन्वॉल्व होके वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे और उससे भी सीखेंगे और क्रिएटिव लर्निंग इससे भी डेवलप होगी और कुछ अच्छा वो कर पाएंगे लाइफ में. सेमिनार्स होने चाहिए. दे एक्सप्लोर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट इन स्मॉल ग्रुप्स. ठीक है, वो सेमिनार्स में भी वो डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे और अपने अकॉर्डिंगली वो अब खुद क्या वो करना चाहते हैं, किस फील्ड में वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, दे विल डिसाइड. देन इंडिविजुअल डेवलपमेंट. दे लर्न स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ असेसमेंट एज वेल एज नॉलेज अबाउट करियर्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. फिर इन डेप्थ स्टडी. लास्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, इन डेप्थ स्टडी मीन्स दे परस्यू देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड बिकम प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज एंड मे इवन कंडक्ट सम रिसर्च. ये कैसे होगा, जब बच्चा खुद इन डेप्थ स्टडी करेगा. लास्ट इज डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स. Gifted, talented and creative learners should be asked to create complex products similar to those created by professionals. फिर हम उन स्टूडेंट्स से ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब उनका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाए, ओके, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाए, क्रिएटिविटी उनकी बड़ी अप टू मार्क हो जाए, कि वो इस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाएं जैसे कि एक प्रोफेशनल बनाते हैं. These products should require such learners to stretch their abilities and extend their knowledge, provide authentic and challenging learning experiences as well as making meaningful assessment. वो सारी चीज़ें फिर उनमें वो डेवलप हो जाएंगी जो कि प्रोफेशनली स्किल्ड लोगों में होती हैं. मीन स्टूडेंट्स विल be able to become more professional and then ultimately they will become successful in their life, professional or social. For instance, they may conclude a unit in science by creating a product for publication that will communicate what they have learned, such as news article develop कर पाएंगे, टेक्निकल रिपोर्ट पब्लिश करवा पाएंगे, लेटर्स और ड्राइंग्स बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स लिखेंगे, जिसको कहते हैं ना जर्नल्स में लिखे जाते हैं, पेपर पब्लिश होते हैं बच्चों के. तो वो यही होता है कि दीज स्टूडेंट्स, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, व्हेन दे अटेन दैट लेवल, वो भी कुछ डेवलप करते हैं, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करते हैं, दैट देयर वर्क इज़ पब्लिश्ड. द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ दैट देयर प्रोडक्ट रिक्वायर्स देम टू ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन, कि वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको क्या करना है, क्या क्या मिला, कैसे कैसे फाइंड आउट किया गया, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए एंड पब्लिक को बताया जाए. इन कोलैबोरेशन विद द टीचर, टीचर के साथ सच लर्नर्स शुड डेवलप द क्राइटेरिया फॉर जजिंग देयर ओन वर्क. टीचर जैसे उनके काम को असेस कर रहा है, बच्चा भी असेस करे कि जो जो उसने किया है वो उसमें क्या कमी रह गई या क्या अच्छी परफॉर्मेंस आई, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट आए, कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स रह गए, उसको इम्प्रूव करना है. ये बच्चे में भी जजिंग पावर जो है डेवलप हो जाएगी. दे कैन ऑल्सो बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड करेक्टिंग देयर मिस्टेक्स. और द स्टूडेंट, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस तरह तैयार कर देना है कि दे आर एबल टू फाइंड देयर मिस्टेक्स एंड करेक्ट देयर मिस्टेक एज वेल एज डिस्कवरिंग मैथड्स टू वेरीफाई देयर वर्क. और ऐसे मैथड जनरेट कर सकें ताकि उनका काम वेरीफाई हो सके. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट नाउ. अब इसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं कि आपने जो पेपर में सॉल्व करने हैं
A creative learner refers to one who is highly intelligent, capable of scoring consistently good marks in tests, good at lateral thinking and problem solving, very talented in drawing and painting. अब ये आपके पास चार ऑप्शन हो गए, आप आंसर सोचिए जरा क्या हो सकता है. देन आई शो यू द आंसर. मेरा कोई बायस नहीं है इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड आंसर है. सो थर्ड आंसर इज गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. देखिए हमने क्या कहा है, हमने अभी सबसे पहले जब IQ लेवल की बात की हमने कहा है कि गुड स्कोर कर लेना या अच्छे मार्क्स ले लेना ही एक गिफ्टेड स्टूडेंट की निशानी नहीं है. ग्रेड्स डजेंट मैटर बट वी हैव मल्टीपल पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई. यहाँ क्या है, उनकी लैटरल थिंकिंग बहुत अच्छी हो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो. देखिए गिफ्टेड में होता तो यही है, व्हेन दे आर पुट इनटू अ सिचुएशन, वो उस सिचुएशन से निकलने के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं वेरी फास्ट एंड वेरी इफ़ेक्टिव. यही गिफ्टेड स्टूडेंट की निशानी है. सो इस तरह से आंसर आना चाहिए. ओके अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स. वी हैव गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, ऑप्शंस आर कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं. अब ये देखिए वेरी हार्ड वर्किंग जनरल नोशन है. कन्वर्जेंट में होता है जब सारी चीज़ें लाके एक जगह पे रख दी जाती हैं. डाइवर्जेंट में होता है एक चीज़ को डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है. ठीक है, उनकी थिंकिंग डाइवर्ज हो जाती है किसी फैक्ट के बारे में. कन्वर्ज होती है वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं. एक्सट्रोवर्ट होता है वो बाहरी तौर पे मतलब आउटवर्ड होते हैं, ज़्यादा अच्छा सोचते हैं और मिक्स होते हैं सोसाइटी में, ये एक्सट्रोवर्ट होता है. अब थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर सोच चुके होंगे माइंड में. वी गेट द आंसर. सेकेंड आंसर इज दे आर डाइवर्ज थिंकर. मतलब ये उनको एक आपने कोई काम दिया तो दे विल मेक देयर डिफरेंट व्यूज़, वो डिफरेंट व्यूज़ बनाएंगे जितने भी उनसे बन जाएंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंट. ठीक है, व्यूज़ जब आएंगे दिस इज कॉल्ड डाइवर्स थिंकिंग. तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्स थिंकिंग. तो इसको कहा जाता है दे आर डाइवर्जेंट थिंकर्स. इस तरह ये चैप्टर का नॉलेज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. सो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस सेशन इज़ very useful or you had enjoyed this, you have now enjoyed this. ठीक है, so I think you are able to solve questions related to this topic also. Now you will be more effective after learning and after going through this chapter. So best of luck for all of you. Thank you.